as this is a lengthy unit and a unit which requires extra focus because it's a little difficult for most people. I would say it's not difficult. It's 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 a little boring, I will not lie. But it is also fun if you pay attention, okay? So I'm really excited to be here with you, and we're gonna nail this down really quickly. Also, please like, subscribe, and share. It's a small channel. I want to, you know, put more videos for you, and it would really mean a lot if you could support me. Thank you. Yeah, without wasting any time, unit 2. उससे पहले let's just discuss the syllabus. Also, this syllabus is concise, but when you look at the PYQs, questions इसके अलावा भी पूछे गए हैं. A lot of questions have, come on stats, जो यहाँ पे mentioned ही नहीं है. Basically कोई भी जैसे टी टेस्ट पे बहुत फोकस है, अनोवा पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको संडे को कराऊंगी. Like on Sunday, I will be doing PYQs with you. Please look up at my channel by like Sunday Eve. It'll be there. So, yeah. So, philosophical foundations. Yeah, आप लिख सकते हो अपना आंसर पे to make it a bit better. So, we all know what is ontology and what is epistemology. ये philosophical foundations में पढ़ाया जाता है psychology की. It's basically that branch that studies the nature of reality, what exists, कि क्या है. Are mental states real or are they only observable? तो जैसे behaviorism है, if you have done anything before in psychology, if you have a base in it, you know it that behaviorists rejected old schools of psychology such as structuralism, psychodynamic, because they believe that mental processes such as consciousness, feelings, they can't be observable, and they would only see behavior which was observable. Then comes epistemology, which is that branch of philosophy that is concerned with the nature and scope of knowledge. हमें कैसे पता है. इसमें आपके वो सारे आ जाएंगे, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम. ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यूजेस पॉजिटिविस्ट पैराडाइम. वी ऑल नो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज इक्वल टू लाइक एम्पेरिसिज्म, जो हम प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली कंस्ट्रक्टिविज्म वॉज कि हम लोग हमारी रियलिटी जो है वो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस से शेप होती है. सो दैट इज समथिंग. एंड एक है इंटरप्रेटिविस्ट, विच बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. Anyway, moving forward to what's an important part of your syllabus. So, as of now, मैंने इसके ऊपर कोई भी PYQ नहीं देखा है. But this is something you can use as a building block in your answers. You can build your answers on these basics. ये आपका basics है research का. Before we dive into what is quant, what is qual, let us understand the major 4 types. Yeah. So, we have descriptive research. Descriptive research is basically, इसमें आप ज़्यादा कुछ रिसर्चर नहीं करता है. रिसर्चर ना कुछ ज़्यादा करता है ना कुछ कम करता है. रिसर्चर बस देखता है और उसको रिपोर्ट करता है. How is it different from experiment? Because you're not manipulating any variables. You are simply observing and recording. And Kerlinger is an excellent source. इस बुक का फ्री PDF इंटरनेट पे हर जगह आपको मिल जाएगा. नहीं मिलता है, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स. आई विल सेंड इट टू यू पर्सनली. या सो focus on current state, uses survey, observation, case studies and no casual inference. आपको अपने आंसर में मैंने ये बुलेट पॉइंट्स क्यों लिखे हैं, बिकॉज आपके पास आंसर लिखने के लिए टाइम नहीं होगा ज़्यादा. जस्ट राइट दीज पॉइंट्स एंड यू आर गुड टू गो.
ओके अब इसका एग्जाम्पल है प्रेवलेंस ऑफ एग्जाम एंजाइटी एंड CBSE स्टूडेंट्स. लेट अस लुक एट दिस सिनेरियो. ओके ये एक स्कूल है, राइट. बच्चे यहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम देने आए. यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं ABCDEFG. ठीक है. हमारा रिसर्चर यहाँ एक गाड़ी में बैठा है. ओके वो देखता है कि यार जो A है ये तो थोड़ा सा घबराया हुआ है, ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई. B जो है बहुत चिल कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, चिल कर रहा है सबके साथ. C is still in the book. C is very underconfident. C is like मैं बार बार पढ़ता रहूँगा. D is praying. E is again chilling. F is also scared. G is talking to his parents. Okay. So इससे क्या होता है, हमारा जो रिसर्चर है ये बस सिंपली रिपोर्ट करता है कि some children are calm, some are anxious, some are confident. He did not सी कि ओ चलो मैं यहाँ पे जल्दी से एक रूमर फैलाता हूँ कि बोर्ड का पेपर लीक हो गया था कि सारे बच्चे पैनिक करें, कि मैं बोलूँ पेपर कैंसिल हो गया. ही इज़ नॉट डन एनी थिंग. ही इज़ नॉट मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट. ही इज़ सिंपली सीइंग थिंग्स. ही इज़ सिंपली रिपोर्टिंग दोज थिंग्स. 1 second, I forgot how to add a page. Let me just see how do I do that. Oh no. How do I add a page? I'm so sorry. Just give me 2 minutes. Oh yeah. That's how I add a page. I'm so sorry. Then we have evaluative research and then we have diagnostic research. इसको simply understand करते हैं. Evaluative research क्या होता है? जो चीज़ लिखी है evaluative research बिल्कुल वैसा है. हम बस देखते हैं why is something happening. Okay. So there will be a time when you become an IAS. You will do policy making. So when you do policy making, you will have to know कि कुछ चीज़ें क्यों होती हैं. So it's basically trying to understand क्यों होती है, कैसे होती है, क्या हो रही है. Basically in Hindi, that's how I can explain it. तो इसका हम आप अपने आंसर में कमिंग बैक टू इट, यू शुड सिंपली इफ़ यू वांट आप ऐसे एक माइंड मैप टाइप भी बना सकते हो अबाउट डिफरेंट रिसर्चेस. आप यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव, evaluative, then we'll come to diagnostic, then we'll come to prognostic. ठीक है. आप ऐसे लिख सकते हो. You will always start with the definition and always if you remember the citation, always give credit to the author. Begin with the primary author's name. You can mention at all if there are multiple researchers. It's just a way of saying there are multiple authors, but you're only mentioning the primary author's name and along with the year it was published in. Yeah, then features are measures outcomes against goal. It can be mixed method, quantitative, qualitative. अब चलो हम एक साइकोलॉजी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें. If you already done your MA BA or if you already study psychology, एक बहुत फेमस थेरेपी होती है ऑफ CBT, राइट. हम इस एग्जाम्पल में लेते हैं कि एक थेरेपिस्ट ने 4 क्लाइंट्स लिए, A, B, C और D. इन सबको है डिप्रेशन. ओके तो पहले जो है हमारा क्लाइंट, उसने एक इन सबको BDI-2 दिया विच इज़ अ इन्वेंट्री टू मेजर डिप्रेशन. उसमें इनके प्री थेरेपी स्कोर्स आ गए. ए का जैसे 8 आया, इसका 10 आया, इसका 5 आया, इसका 6 आया. फिर पोस्ट थेरेपी हमने देखा तो 8 का डिप्रेशन 8 ही रहा, नो चेंज आफ्टर CBT. मे बी इट वॉज नॉट द परफेक्ट फिट फॉर हिम. D का it became 6. He showed tremendous progress, maybe let's say in 6 weeks. And he also took therapy for 6 weeks. Nothing happened. Then let's see C का example. What did C do? C के अंदर okay, C को तो वैसे भी ज़्यादा नहीं था. It was 4. And with D 5. Not that big of a change. Now this is our quantitative way. These are numbers. These are facts. These are figures. This is one way how we can
evaluate progress. Correct? Okay, then let's see हमने कहा क्वालिटेटिव भी लेंगे. क्वालिटेटिव इज व्हाट? समथिंग दैट can't be quantified, something that is a human experience, a lived experience you can say. So अब ये जो थेरेपिस्ट है इसने देखा ए जो है वो रेगुलर था सेशंस पे. सॉरी, ए का तो स्कोर कम आया ना. ही वॉज इरेग्युलर. ओके, ही वुड शो रेजिस्टेंस. ओके, he would do बदतमीजी with the therapist. He would not comply. He would not do होमवर्क भी नहीं करता था कि जो थॉट लॉग्स देते हैं थेरेपी में, वो नहीं करता था. बट हमने बी का एग्जाम्पल देखा था. बी ने बहुत ज़्यादा ट्रमेंडसली ही शोड चेंज. ही वॉज एक्सट्रीमली रेगुलर. He was always doing homework diligently. He was always on time. And even though it was tough for him, he would communicate, right? Then he also told the therapist कि यार मेरा तो self confidence दोबारा आ गया है. I feel better about myself. Okay? अब इन सारी चीज़ों से थेरेपिस्ट ने क्या किया? थेरेपिस्ट ने evaluate किया ना कि क्या हो रहा है. तो दैट इज़ इन अ नटशेल एवेल्युएटिव रिसर्च. अब आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें काफ़ी हद तक आपसे गवर्नेंस के, पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस पूछेंगे. तो उसमें आप मिड डे मील का एग्जांपल दे सकते हो. बहुत अच्छा एग्जांपल है. इसमें अगर आप लोगों को याद हो, अभी इट वाज रिसेंटली अ फ्यू मंथ्स अगो इन न्यूज़ दैट महाराष्ट्र में एग्स बंद कर दिए गए थे इन महाराष्ट्र फॉर किड्स इन मिड डे मील, राइट? सो इफ़ यू आर एन IAS ऑफिसर एंड यू हैव टू सी कि उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या उससे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज मोस्ट किड्स वर वेजिटेरियन, और इज़ इट पुअर बिकॉज मोस्ट किड्स ओनली गेम फॉर द फूड. फूड में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है एक प्रोटीन, जो एग से बहुत इजीली मिलता है एक बहुत ही अफोर्डेबल वे में. तो उससे क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया का, बिकॉज अब उनको पनीर टोफू लाना पड़ेगा फॉर providing protein to the kids. So basically you are evaluating, you and your team are evaluating how things are happening. Okay, yeah. So next is diagnostic research. Diagnosis सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? 2 seconds. मेरे दिमाग में तो डॉक्टर आता है. बिकॉज एक डॉक्टर है जो डायग्नोज करता है ना कि मुझे या किसी को भी क्या प्रॉब्लम है. डॉक्टर कंडक्ट्स टेस्ट, doctor observes things, whatever, right? So in a diagnostic research also, what the researcher is trying to do, he's trying to understand that एक प्रॉब्लम जो है वो मतलब है क्या, प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, सो इट आइडेंटिफाइज द कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम. ये कैसे हो रहा है. अनदर एग्जाम्पल, आप IAS बन गए हो आप, ठीक है. लेट्स इमेजिन दैट फॉर 2 minutes. You are posted in a small village in Rajasthan where there is a problem of child marriage. Now, before an IAS makes a policy, do you not think it's advisable that they should understand why ये हो क्यों रही है ये चीज़ यहाँ पे? Is it because of illiteracy? Is it because of ignorance? Is it because of patriarchy? You know, the list just goes on. तो अगर जब एक IAS ऑफिसर को रूट कॉजेस पता है तो डोंट यू थिंक कि वो IAS ऑफिसर बेटर पॉलिसी बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे. ये am I right? Yeah. So that would basically be a part of your diagnostic research. इसमें हम इसके फीचर देखते हैं. प्रॉब्लम फोकस्ड है, रूट कॉज को क्या एड्रेस करा है, चाइल्ड मैरिज क्यों हो रही है. इसमें दे कैन बेसिकली डू केस स्टडीज़, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, आप सर्वे भी कर सकते हो, राइट. टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई स्टैंडर्डाइज स्केल है. अब इसमें अगेन वी शुड यूज़ socially relevant examples as you are preparing for an exam which will basically highlight how socially aware you are about things, right? So farmer suicide rate का example दे सकते हो आप. Understanding learning disabilities via standard assessments. मैं आपको example दे सकते हो कि एक IAS officer न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020
कितना accessible है for students for SLDs, अगर किसी को ADHD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और बेसिकली एनी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उसके लिए कैसे है. तो आप समझ रहे हो, इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्स्ट विथ साइकोलॉजी एंड यू आर सोशली अवेयर, you can make beautiful examples which will make your performance stand out. Then last in the 4 quadrants mentioned in your syllabus, we have prognostic research. This basically predicts future outcomes based on current data. Again, you have to mention a citation. Most of your peers would. Please do it. क्या होगा? Example of again child marriage. Child marriage होगी तो क्या होगा? चाइल्ड मैरिज होगी तो इट विल लीड टू व्हाट? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा. वो तो हो ही रहा है. उसके साथ साथ मेटर्नल मोर्टालिटी रेट बढ़ेगा बिकॉज व्हाट? टीनेज प्रेगनेंसीज विल इंक्रीज. सेकेंड, इट कैन ऑल्सो लीड टू मैरिटल रेप. इट कैन ऑल्सो लीड टू हायर ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स. तो ये बस एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहा है. अब इसके अंदर आप स्टेटिस्टिकल टूल्स भी यूज़ कर सकते हो वेयर रेलिवेंट, सच एज रिग्रेशन. इसका एप्लीकेशन कहाँ है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पब्लिक हेल्थ एंड रिस्क असेसमेंट. लेट्स क्विकली रिवाइज द 4 मेजर टाइप्स वी हैव डन. यू हैव डिस्क्रिप्टिव. इसका ontology assumption है that reality exists and can be observed. Positivist, ऐसा क्यों हो रहा है? In case somebody wants to screenshot. Evaluative, प्रोग्राम्स जो हैं क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस पर हम मिक्स मेथड यूज़ कर सकते हो. डायग्नोस्टिक्स, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. प्रोग्नोस्टिक, कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. Now before that, I would like to discuss with you what is quantitative, what is qualitative research. If you often get confused between these two terms, don't worry, most of us do. Okay, all you gotta do is just be like, याद रखना है. क्वांटिटेटिव को याद करने के लिए सोचो क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो. आपकी मम्मी लेस के पैकेट लाई घर पे, कितने लाई? 3 लाई, 4 लाई, 5 लाई, है ना? वो एक क्वांटिटी है, तो उसमें नंबर्स होंगे. अगर किसी चीज़ में नंबर है तो उसमें स्टेटिस्टिक्स लगेगी ना. ऑफ कोर्स वर्ड्स पे भी स्टेटिस्टिक्स लग जाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, बट लेट्स जस्ट कीप इट टू दैट राइट नाउ. याद करने में किससे आसानी होगी. इसको हम ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हैं. वाई? बिकॉज इट हैज़ सर्टेन वेरिएबल्स. ओके. सेकेंड, ये बहुत अच्छे से हम इसको एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हम इससे बहुत ईज़िली कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे. बिल्कुल कर पाएंगे, राइट. इसमें हम स्टेटिस्टिकल टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम उसमें टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल दे रही हूँ. कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं हम. कोरिलेशन भी बहुत टाइप के आते हैं. उसके बाद हम इसमें अनोवा यूज़ कर सकते हैं. अनोवा के भी टाइप है, मनोवा है, एंकोवा है, मैंकोवा है. देन वी हैव रिग्रेशन लिख सकते हैं. ठीक है. फिर इसके ऊपर हम डिफरेंट टूल्स हैं. You can use tools like SPSS. You can use tools like R. Not R for graphs. Yeah. So हम basically quantitative में ही कर सकते हैं. हमारा हम क्वालिटेटिव काफ़ी हद तक इसका ऑपोजिट है. इसमें हम lived experience जो है उसको समझते हैं. ठीक है. इसमें हम basically किसी का what somebody has been through, somebody's personal experience, हम वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एंड why is qualitative more
relevantly seen in social sciences because not everything is facts and figures. Okay, जैसे you want to understand effects of patriarchy on men and women. Now you don't know if there is a scale for that. अगर इसके ऊपर स्केल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई स्केल नहीं है तो आप इंटरव्यू का यूज़ कर सकते हो, आप फिर कोई सर्वे का यूज़ कर सकते हो. यू कैन स्टडी इट वाया केस स्टडीज़. देन वी हैव अदर अप्रोचेज ऑल्सो, जिसमें से सिर्फ एक ही आपके सिलेबस में मैंशनड है, दैट इज़ ग्राउंडेड थ्योरी. बट आई स्टिल बिलीव हमें और करना चाहिए इन केस अ क्वेश्चन कम्स. जैसे ग्राउंडेड थ्योरी है. ग्राउंडेड थ्योरी इज़ दैट द डेटा ड्राइव्स द थ्योरी. जो उस स्टोरी का जो डेटा है हम उससे थीम्स निकालते हैं. देन वी हैव थीमेटिक एनालिसिस. इसमें भी देर आर डिफरेंट मेथड. सबसे पॉपुलर ब्राउन एंड क्लार्क होता है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अगर आपको एग्जाम्पल डालना हो तो. देन वी हैव नैरेटिव एनालिसिस. देन वी हैव कंटेंट एनालिसिस एंड माई पर्सनल फेवरेट फिनोमिनोलॉजिकल. इसके ऊपर give me some time, I'll see it. If it's anywhere mentioned in a PYQ, then I'll do it with you. Otherwise, it's just a little bit too complicated for you. Yeah. So next we come on to methods of research. Next is survey method. Survey method, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये क्वांटिटेटिव में आता है या क्वालिटेटिव में आ सकता है. माई आंसर टू दैट इज़ इट कैन बी यूज इन बोथ. बिकॉज अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को एम्प्लॉय करते हैं तो उसमें हम सर्वे डाटा डाल सकते हैं, जैसे किसी की एज हो गई, ठीक है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो कैसे कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी. बट देन इसमें आप ऐसी चीज़ें भी पूछ सकते हो सर्वे में. अगर फॉर एग्जांपल आपको डिप्रेशन के ऊपर सर्वे ऐसे डालना है कि सैडनेस, लो मूड, तो इसमें डाल सकती हो येस, नो, थिंग्स लाइक दैट. सो सर्वे इज़ data from a defined population using questionnaire or interview. What is a questionnaire? A questionnaire is basically a standardized format that you have made, जिसमें आप सबसे सारे पार्टिसिपेंट से एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछते हो. That is why it is standardized. Always remember, if such a question comes in your exam, it will obviously come saying compare or what are some ways to you collect data which is maybe economical, लार्ज स्केल पे हो जाएगा, डिजिटल एज में हो जाएगा. तो उसके लिए आप बहुत इजीली सर्वे लिख सकते हो. बिकॉज गूगल फॉर्म है, सर्वे मंकी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप फ्री में सर्वे बना के लोगों के साथ डेटा कलेक्ट कर सकते हो. सो इट इज़ बेसिकली फीचर्स क्या है. लार्ज सैम्पल, ऑफन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब सारे ही रूरल हैं, सारे ही मेडिकल स्टूडेंट हैं, सारे ही आर्मी ऑफिसर्स हैं, सारे ही लोग टीचर्स हैं, सारे ही लोग लड़की हैं, सारे लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं. तो वो एक बड़ा सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि वो जो फाइंडिंग्स है आपकी जनरलाइज हो सके. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर कंपैरेबिलिटी, लाइक आई मेंशन, ईच पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. एंड लाइक आई मेंशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो पाएगा. ये क्वांटिटेटिव कैसे होगा? आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा के इसको क्वांटिटेटिव कर सकते हैं. फिर उसके साथ अगर आपको क्वांटिटेटिव करना है, मैं आपको देती हूँ एग्जांपल ऑफ बेक डिफरेंशियल इन्वेंटरी. आपने वो स्केल लिया, उसके सारे आइटम्स को आप सर्वे कर सकते हो ना. 100 पार्टिसिपेंट्स इन रूरल एरिया, जो सारे औरतें हैं. फिर जो BDI का स्कोर है उसको कोरिलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक लेवल के साथ कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है. फिर हम उसको रिग्रेशन एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्या डिप्रेशन इन रूरल विमेन इज़ इक्वल टू हाउ दे इंटरप्रेट हैप्पीनेस. इसमें भी हम हैप्पीनेस का एक स्केल लगाएंगे, उस स्केल से देखेंगे कि क्या स्कोर्स आते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. या
इज़ इट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज पॉपुलेशन? येस इट इज़, बिकॉज आपको एक गूगल फॉर्म बनाना है, उसको आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं लोग हर जगह. लिमिटेशन क्या है? सेल्फ रिपोर्ट बायस. इसका ये मतलब होता है कि यार मेरा BDI का टेस्ट लिया मैंने, बट मैं नहीं चाहती कि एग्जामिनर को लगे कि आई हैव डिप्रेशन. ओके, तो मैं फॉल्स रिपोर्ट कर देती हूँ अच्छा दिखने के लिए. बहुत बार ऐसे होता है कि पर्सनालिटी क्वेश्चनर्स होते हैं, तो पीपल टेंड टू लाई ऑन पर्सनालिटी क्वेश्चनर्स दैट ओ आई एम अ लीडर, आई एम नॉट शाई, आई एम हाईली कॉन्शियस. ऐसी चीज़ें झूठ बोल देते हैं. आपके लिए एक अच्छा रेलिवेंट एग्जाम्पल होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर डेमोग्राफिक एंड हेल्थ डेटा इन इंडिया. जैसे जब लोग जनगणना होती है हमारी कंट्री में, तो वो जो लोग हमारे घर आते हैं वो पेन एंड पेपर से सर्वे तो करते हैं. अच्छा, फैमिली में कितने लोग हैं? 4 हैं. कितने लोग 10th पास हैं? अच्छा, फीमेल है, मेल है, अदर जेंडर है कोई घर में? ओके, आपकी इनकम कितनी है पर ईयर? क्या आप BPL हो? थिंक लाइक दिस. दिस इज़ बेसिकली collection of your data. Don't forget it. Very simple. Next is observation. Observation के ऊपर आपको PYQ है. Question came on this. It's important. Also, please suggest in the comments, do you want me to teach you in full length notes? जैसे बुक से पढ़ाते हैं. मैंने सिर्फ पॉइंटर्स देखे हैं, बाकी मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई फील दैट इफ़ यू हैड टू रीड देन कर्लिंगर इज सो मच बेटर देन वट एवर आई एम राइटिंग हियर. So, but do let me know. Yeah. Yeah. Systematic watching. Why is it systematic? Because, okay, always remember, if you ever get confused कि यार ये चीज़ रिसर्च कैसे हो सकती है, कोई चीज़ रिसर्च तभी होगी जब उसमें एक स्टैंडर्ड वे होगा, एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ को करने का, जो एक रिसर्चर जो है उसे फॉलो करता है. अब इस चीज़ का प्रोटोकॉल क्या हुआ? ये सिस्टमैटिक हुआ. मतलब रिसर्चर के डिपेंड करता है कैसी है, क्या वो नेचुरलिस्टिक कर रहा है, क्या वो एथनोग्राफी कर रहा है, कैसे ऑब्जर्व कर रहा है वो. तो वो दूर से देख रहा है, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, ताकि उसकी प्रेजेंस जो है वो हिंडर ना करे लोगों का बिहेवियर. दैट इज़ very important, because if their presence, I'm so sorry, is hindering behavior, then that research is not research. You have to be careful of your words here, okay? Because I'm not a big believer of रट्टा लगाना, but I'm so sorry, आपको ऐसी चीज़ों में रट्टा लगाना पड़ेगा. Because if you miss out on words like systematic, then it totally changes meaning of what you're trying to say or what research is, right? Is especially in units में आपको थोड़ा सा you have to cram words. अब there are 3 types of research, okay? Naturalistic, controlled, participant. इसको आप आंसर में ऐसे ऐसे करके बता देना या फिर ऐसे ऐसे करके बता देना. Don't write full words, don't waste your time, okay? Because ये इतने बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप थोड़ी सी चीज़ें सही लग दोगे ना, तो एग्जामिनर मे बी आपका बस ब्रश अप करके छोड़ दे आपका पेपर. It is systematic watching, recording and analyzing of behavior without manipulation of variables. विदाउट मैनिपुलेशन, आपकी प्रेजेंस बिहेवियर को ना करे इफेक्ट. नेचुरलिस्टिक हाई. अच्छा, एकोलॉजिकल वैलिडिटी ये होती है कि जो चीज़ एनवायरनमेंट में हो रही है वो एनवायरनमेंट के कारण ही हो रही है. ऑब्जर्विंग क्लासरूम बिहेवियर, वो वाला एग्जाम्पल ले लो. रिसर्चर 10th क्लास के बोर्ड्स के बाहर बैठा है, देख रहा है यार बच्चों का बिहेवियर कैसा है, कौन घबरा रहा है, कौन खुश हो रहा है. कंट्रोल लैबोरेटरी, स्किनर्स बॉक्स. इसमें बेसिकली एक रैट था, एक फूड पैलेट गिर रहा था बार बार नीचे, और जैसे ही रैट एक लिवर को या फिर एक बटन को प्रेस करा था तो फूड गिर रहा था. तो उसके बाद उस रैट ने लर्न कर लिया कि जितनी बार वो उस लिवर या बटन को प्रेस करेगा उसे खाना मिलेगा, और उसने कुछ सीख लिया. तो इसमें स्किनर बस देख रहा था एक लैब के अंदर, एक कंट्रोल सेटिंग के अंदर, वो हेल्प नहीं कर रहा था रैट की. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, रिसर्चर बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप. इसको आप एथनोग्राफिक रिसर्च भी कह सकते हो. ओके, आई डोंट नो इफ समबडी हैज सीन दैट मूवी 22 जंप स्ट्रीट, जिसमें police detectives go become a part of like high school students so that they can catch drug dealers. They were basically doing an ethnographic research because they were mixed up without revealing their identity. Ethnographic research वो भी हो सकती है कि एक researcher pretends to be a monk और जाके वो मे बी लद्दाख में बुद्धिस्ट लोगों के साथ रह सकते हैं to understand the Buddhist way of life and understand what Buddhism is all about by being a
part of them. इसमें yeah. Yeah, so the advantage is that it uses real real time data, and it is useful where self report measures are unreliable. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेस्ट अगेन पर्सनालिटी देखनी है आपको लोगों की कि एक कॉर्पोरेट कल्चर में लोग कैसे बिहेव करते हैं, लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, तब आप जाके उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. इसमें ऑब्जर्वर बायस लाइक आई सेड कि अगर लोगों को पता है आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो तो दे विल बिहेव डिफरेंटली. हॉथॉर्न इफेक्ट, पार्टिसिपेंट्स ऑल्टर देयर बिहेवियर व्हेन ऑब्जर्व्ड. This is an important principle of social psychology. And इसके साथ साथ there is also something called performance. Sometimes there is social facilitation. And social inhibition. Sometimes when somebody is watching us, we perform better, and if sometimes somebody is watching us, our performance just might get altered. या इसमें आप PRG की डेवलपमेंटल स्टेजेस वाला एग्जाम्पल दे सकते हो. दिस इज़ अगैन समथिंग वील लर्न इन द लेटर यूनिट्स. इफ़ यू डोंट नो हु जॉन PRG was, please leave it. Next is case study. The name is only telling you it is intensive, in-depth investigation of a single individual, group or event. Case study method is useful when your cases are a little atypical. सारी पॉपुलेशन में ये चीज़ नहीं है. ओके, हम लोग वो जो अंडमान एंड निकोबार में जो ट्राइब है लोगों की, ओके, आई कांट रिकॉल द नेम, इल कम टू मी इन अ मिनट. उस ट्राइब के जितने भी लोग थे, अगर उनका कल्चर किसी को स्टडी करना है तो वो कल्चर इन द वर्ल्ड और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वहीं करता है. तो इट विल बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी. फ्रॉइड के कुछ केसेस को ले लो, राइट. फ्रॉइड के जितने भी केसेस थे अबाउट लाइक इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स, वो काफ़ी हद तक केस स्टडीज़ थी. बिकॉज that is why one major criticism of psychodynamic theory was that it was only based on case studies and it was not generalizable. इसका फीचर्स है कि इट कैन कंबाइन इंटरव्यू, जैसे जिसकी केस स्टडी है उसका इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड. इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तो बहुत सारे लोग जो सर्वाइवर्स थे उसके, उनका इंटरव्यू लिया गया था. बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे किए गए थे, pictures and their personal experiences can generate hypothesis for future research. You can basically develop your research question, your hypothesis that you can prove by doing proper. This example is wrong, please don't. This example is wrong, I'm so sorry, just don't look at it. Yeah, the Phineas Gage example is right. So those who don't know, Phineas Gage example is very famous in most books for psychology. So Phineas Gage was a railroad worker and he met with an accident, and basically he had a rod go through his brain and his frontal lobe was damaged. And after his case it was, क्योंकि उस टाइम ब्रेन इमेजिंग इतनी ईजिली नहीं होती थी, तो आफ्टर हिज केस पता चला था कि फ्रंटल लोब हैज़ अ लॉट ऑफ functions such as decision making, most of your personality, and other analytical tasks. Then is experiment. Experiment is basically where you have an independent variable, a dependent variable जो उसका की component है. It should have random assignment. मतलब random assignment क्यों? Because उससे बिल्कुल bias ख़त्म हो जाएगा. Each and every person would have the equal chance of being a part of the study. कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप, इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल किसी को एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दी गई तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप को दी गई मेडिकेशन और कंट्रोल ग्रुप को नहीं दी गई, टू सी क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में. इट्स हाई इंटरनल वैलिडिटी, एस्टैब्लिशेज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब क्या एंटी एंजाइटी ड्रग से एक्चुअली कोई इफेक्ट पड़ता है कि इट्स टोटली बोगस. लो एकोलॉजिकल वैलिडिटी इफ़ इट इज़ टू artificial. Ethical practical constraints can be there if like you don't take consent or if it's a bit inhumane.
Oh, so this example, it's kind of so basically there were two groups of kids. एक बच्चों को डॉल दी गई थी और एक बच्चे को डॉल नहीं दी गई थी. तो so oh I'm so sorry, I got confused. दोनों groups को डॉल दी गई थी. It's just that one group was given like they were shown a video जिसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन था और बाकी बच्चों का आई डोंट थिंक कुछ दिखाया गया था. तो जिस ग्रुप को अग्रेसिव वीडियो दिखाया था, दे वर हिटिंग द बॉल, हिटिंग द बोबो डॉल, और अदरवाइज द अदर ग्रुप वाज जस्ट प्लेइंग वेरी नॉर्मली विद इट. सो दैट वाज द कंट्रोल ग्रुप जिसको नॉर्मली दिखाया गया था. नो वीडियो वाज शोन. दैट वाज द कंट्रोल ग्रुप. एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाज जिनको वायलेंट वीडियो दिखाया गया था. आफ्टर दैट वी मूव टू types of research design. One is an experiment research design and one is a non-experiment research design. I'm pretty sure आप लोग अभी तक guess कर सकते हो कि what the two things are. इस पे भी PYQ आया था. Okay. Anyway, experimental design is अभी जो हमने पढ़ा, manipulation, control, randomization, replication, causality. Bobo-doll experiment. No manipulation of IV occurs. Variables are studied as a naturally occur. इसमें आप केस स्टडी का एग्जाम्पल दे सकते हो. इसमें आप जैसा हमारा था ना वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वैसे आप कर सकते हो. It's basically what we just studied. And here is like a comparison table for experiment and non-experiment. This is something I really think will come in your exam. And if it's a 10 marker, then just draw this table and you're good to go. Next is another important thing, which is a PYQ. और हम संडे को PYQs करेंगे. But this is Sundays are for PYQs, remember that. Yeah, so quasi experimental means आधा, not purely, it's not full, मतलब it's not purely experimental. And आप लोग इसको 100% it'll come in your exam. Why do you ask? Because quasi experimental is the perfect fit for psychological research. That is why. So it is a research design where the researcher manipulates IV but lacks full random assignments of participants. मतलब for example आपको anti anxiety medication का करना है. You have a control group, you have an experiment group, okay. But आप यहाँ पे क्या करते हो? If it was a true experiment, then there would be complete randomization. अगर for example 50 participants हैं तो 25 randomly इधर आएंगे, 25 randomly इधर आएंगे. But quasi experimental में the researcher plans, decides which participant will go in control, which participant will go in experiment. एंड इसका एक रेलिवेंस ये इसलिए मान के चलो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी कि ओके आई वॉन्ट टू पुट 10 people who don't have anxiety in control group, or maybe I want to add equal number of people who have anxiety in control, anxiety in experiment, equal people of who don't have an anxiety disorder. Yeah. Then these are used when true experiments are impractical or unethical. अब ये unethical क्यों हो सकता है? For example, I'll just tell you why. हमारा जो given example उसमें unethical क्यों होगा? You have 50 people जिसमें से let's say 25 do have a diagnosed anxiety disorder, okay? They have come here for a 4-week plan for medication. Trial है ये. They want to see relief, but आपने उनको अगर कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया where there is no medication, their anxiety will increase, but they will keep on thinking that उनको तो ट्रीटमेंट मिल रहा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनएथिकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो
just to explain why is it unethical sometimes. Then is core characteristics. You have to mention this in your exam, okay? So most of the times what happens is हम लोग ज़्यादा explain करने में लग जाते हैं और features नहीं लिखते हैं. तो आपको features लिखने हैं. You have to mention features of everything in research. Features mention करो plus example mention करो और plus points पे लिखो. Good luck. That's how you like get a good score at least out of 15. मैनिपुलेशन प्रेजेंट. क्या इसमें मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को? ऑफ कोर्स हम करते हैं मैनिपुलेट को. क्या इसमें रैंडमनाइजेशन होती है? अगर होती तो ये क्वाज़ाई होता, नहीं होता. अगर होती तो ये ट्रू एक्सपेरिमेंट बन जाता, पर ये ट्रू नहीं है, ये क्वाज़ाई है. ठीक है. सेकेंड, कंट्रोल मैकेनिज्म, मैचिंग स्टेटिस्टिकल. ठीक है. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कम करने के लिए हम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स डालते हैं सो दैट हम कंट्रोल कर सके ग्रुप के डायनामिक्स. देन इज़ अप्लाइड सेटिंग्स, कॉमन इन एजुकेशन. मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में, पॉलिसी रिसर्च में. नेक्स्ट इज कैजुअलिटी कॉशन. Oh, this is basically trying to say that this is stronger than a correlational design, but it is weaker than true experiment when it comes to drawing inferences. इसका ये मतलब हुआ that if there is a correlational design, it will basically just tell us कि क्या एंजाइटी मेडिकेशन से एंजाइटी कम होती है कि नहीं होती है. That is something correlation will tell us. But in quasi experiment, we can also mention different levels of anxiety. Then we can explain the nuances because here the variables are controlled by the researcher. The researcher knows कि एक ग्रुप में कैसे लोग हैं, लोगों की क्या बैकग्राउंड है. And it is weaker than in true experiment because there is no complete randomization here. Now we come to common types of this. You will have to mention this also. ये भी important part है इस answer का. There are non-equivalent group designs. This basically explains that we compare pre-existing groups, pre-test and post-test, use different control baselines. So इसका in short you're just trying to understand कि आप compare कर रहे हो कि एक ग्रुप ने जैसे क्लास 10th ने इंग्लिश के एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया, जिसमें से एक ग्रुप को तो सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड था और दूसरे को स्मार्ट बोर्ड दे दिया एंड इंटरैक्टिव लर्निंग हुई. तो व्हाट परफॉर्म्स बेटर? सो दो ग्रुप्स तो ऑलरेडी थे ना. अब इन दो ग्रुप में जो आपका टीचिंग मेथड है उसको उससे रिजल्ट्स को हमने कंपेयर किया. इसमें ट्रू रैंडमाइजेशन नहीं हुई बिकॉज द ग्रुप्स पर ऑलरेडी देयर. टाइम सीरीज डिज़ाइन इज़ बेसिकली मल्टीपल ऑब्जर्वेशन बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट. इसमें आप अपना एंजाइटी का मेडिकेशन वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बट द एग्जाम्पल दैट वी हैव इज ट्रैकिंग क्राइम रेट्स मंथली एंड बिफोर आफ्टर अ कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम. प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. देन रिग्रेशन discontinuity design, assign participants to treatment based on a cutoff score and continuous variable. इसमें जैसे अगर आपको एंजाइटी वाला एग्जांपल ही दूँ तो अगर हमने कोई एंजाइटी स्केल दिया उसमें जैसे किसी का स्कोर अगर 50% से ज़्यादा है तो उन्हीं को लेंगे हम इस टेस्ट के अंदर. अदरवाइज वील जस्ट लाइक नॉट टेक द अदर्स लाइक अ कट ऑफ स्कोर बेसिकली. देन इज इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिज़ाइन. दैट वन ग्रुप इज स्टडीड ओवर टाइम विद एन इंटरवेंशन पॉइंट. इसमें हमने स्मोकर्स का एग्जाम्पल दिया है. अगर आप उस टेस्ट का एग्जाम्पल हो तो वी हैव टेकन 50 पीपल रैंडमली. उस 50 में से हमने उनको बिफोर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देखा उनका क्या बिहेवियर था और फिर आफ्टर CBT उनको कंपेयर किया, देखा क्या फ़र्क आया उनके अंदर. अब इस ग्रुप इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ एथिकल, प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड सेटिंग ऑफ कोर्स. ग्रेटर एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्ोलॉजिकल वैलिडिटी भी ज़्यादा होगी. अलाउज कैजुअल टेस्टिंग वे रैंडमनाइजेशन इज़ पॉसिबल. अब इसके लिमिटेशन क्या है? सिलेक्शन बायस, मतलब researcher can have a bias towards a certain group, towards certain people. Confounding variables are harder to control. Confounding variables का मतलब बस ये मतलब हुआ कि other variables that can coexist with the participants and weaker internal validity than truer experiments. Validity के सारे concepts हम दूसरी units में पढ़ेंगे. Okay, so I think I'm going to end this video here, and in the next video we are going to be discussing qualitative
methods. And before that, I'm going to explain some statistical tools. So hopefully tomorrow I'll upload that video, and then we'll begin on qualitative methods. And again, these are very important. Again, PYQ. इस वाले यूनिट से एटलीस्ट हर साल 2 to 3 questions have come, so it's pretty important. Anyway, thank you for coming. Please subscribe. It would mean a lot, and like my video.